जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा समस्त प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा महापुरुष निरंतर अपने आत्म स्वरूप में ही मग्न रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है। उसकी समस्त इच्छाएं एवं अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। ऐसे महापुरुष का किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा कर्म किए नहीं जाते। प्रारब्धानुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। In sound sleep, man is self-sufficient. He has nothing to seek from any entity. But it is a negative and temporary state. The spiritually enlightened man, on the other hand, enjoys infinite beatitude within himself. The surface of the ocean seems boisterous, but at the bottom it is all calmness. Such is the state of affairs of the Brahma Gyanin. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 3 श्लोक 18। त्या महापुरुषाला कर्म करून किंवा न करून या जगात कोणताही उद्देश नाही आणि सर्व प्राण्यांशी त्याचा कुठलाही स्वार्थी संबंध नाही। असा महापुरुष स्वतःच्या आत्मसाक्षात्कारातच मग्न असतो, म्हणून त्याला कोणत्याही कृतीद्वारे पूर्ण करण्यासाठी कोणताही सांसारिक किंवा आध्यात्मिक उद्देश उरलेला नाही। तसेच कर्माचा त्याग करून पूर्ण करण्यासाठी कुठलाही उद्देश उरलेला नाही। त्याच्या सर्व इच्छा आणि आकांक्षा संपलेल्या आहेत। त्याला आता काहीही साध्य करायचे राहिलेले नाही, म्हणून कर्म करणे किंवा न करणे ही त्याच्यासाठी पूर्व अट नाही। जो शास्त्रांच्या आदेशापासून पूर्णपणे मुक्त आहे, अशा महापुरुषाचा कोणत्याही अस्तित्वाशी संबंध नाही। तो कृती करत नाही। सार्वजनिक दृष्टिकोनातून त्याच्या प्रारब्धानुसार त्याची कृती लोकांच्या हितासाठी केली जाते। प्रत्यक्षात त्याचा या कृतींशी कुठलाही संबंध नाही, म्हणून त्या कृतींना कर्म अजिबात मानले जात नाही। जय गुरुदेव। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 18 നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥ നാകൃതേനേഹ കശ്ചൻ ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥ വ്യാപാശ്രയഃ. ആ മഹാനായ മനുഷ്യന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ അവ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. കൂടാതെ ജീവജാലങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വാർത്ഥ ബന്ധവുമില്ല. അത്തരമൊരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ നിരന്തരം സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കർമ്മത്തിലൂടെ നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലൗകികമായോ ആത്മീയമായോ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ച് നേടാനും ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. അവൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അവസാനിച്ചു.
അവന് ഇത് നേടാൻ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലോ അവ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലോ അവന് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയുമില്ല. അവൻ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാണ്. അത്തരമൊരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയുമായും സ്വാർത്ഥബന്ധം പുലർത്തുന്നില്ല. അവൻ തനിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. തൻ്റെ വിധിയനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുമായി അവന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികളെ കർമ്മം ആയി കണക്കാക്കുന്നുമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకం 18. నైవతస్య కృతేనార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన నజాస్య సర్వభూతేషు ఖచ్చిదర్థ వ్యపాశ్రయ. అట్టి మహాపురుషునికి ఈ ప్రపంచంలో కర్మను ఆచరించుడిచే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు, కర్మను ఆచరించకపోవచ్చే కూడా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంకను సమస్త ప్రాణులందును కించిన మాత్రపు స్వార్థ సంబంధమేమీ కూడా ఉండదు. అటువంటి మహాపురుషుడు నిరంతరం తన ఆత్మస్వరూపం నందే లీనమై ఉంటాడు. ఈ కారణం చేతనే అతనికి ఏ విధమైన కర్మల చేతను ఏ విధమైన లౌకిక పారలౌకిక ప్రయోజనమును సాధించే శేషమేమీ మిగిలి ఉండదు. మరియు ఏ విధమైన కర్మలనైనా త్యజించుట లేదా ఏ విధమైన ప్రయోజనమును పొందుటకు శేషమేమీ కూడా ఉండదు. అతని యొక్క సమస్తమైన కోరికలు అభిలాషలు పూర్తి కాబడినవి. ఇప్పుడు అతనికి పొందవలసింది ఏమీ మిగిలి ఉండలేదు. అందుచేతనే అతనికి విధేయతతో చేయదగిన కర్మ లేదు, వాటిని చేయకుండా ఉండదగిన కర్మను లేదు. అతడు శాస్త్రముల నుండి సర్వదా ముక్తుడు. అట్టి మహాపురుషునికి ఏ విధమైన ప్రాణులతోనూ ఏ విధమైన స్వార్థ సంబంధము ఉండదు. అతని ద్వారా కర్మ చేయబడదు. ప్రారబ్ధమును అనుసరించి లోకాచారం అనుసరించి అతని ద్వారా లోక రక్షణార్థము కర్మలు చేయబడుతూ ఉంటాయి. వాస్తవానికి అతనికి ఆ కర్మలతో ఏమాత్రం కూడా సంబంధం ఉండదు. అందుచేతనే ఆ కర్మలు కర్మలుగా భావించబడవు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. నైవ తస్య కృతేనార్థో నా కృతేనేహ కశ్చన్ న చాస్య సర్వభూతేషు કશ્ચિદર્થ વ્યપાશ્રય. એહેન મહાપુરુષ लेल એ સંસાર में न त कर्म करबाक कोनो प्रयोजन रहैत अछि आ ने कर्म नहीं करबाक. समस्त प्राणी सँ हुनकर कोनो स्वार्थ के संबंध नहीं होइत अछि. एहन महापुरुष सदिखन अपन आत्म स्वरूप में मग्न रहैत छथि. तैं हुनका लेल कोनो लौकिक वा परलौकिक प्रयोजन कर्म द्वारा सिद्ध करबाक आवश्यकता नहीं रहि जाइत अछि. अनेक कर्म त्यागे सँ किछु सिद्ध करबाक शेष रहि जाइत अछि. हुनकर सकल इच्छा आ अभिलाषा समाप्त भऽ गेल अछि. आब ओहिसँ किछु प्राप्त केनाइ बचल नहि अछि. तैं हुनका लेल ने कर्म करब विधेय अछि आ ने कर्म छोड़ब ही उचित अछि. ओ शास्त्रक शासन सँ सर्वथा मुक्त छथि. एहन महापुरुषक कोनो प्राणी सँ स्वार्थक एको रति संबंध नहीं रहैत अछि. हुनकर द्वारा कर्म नहीं कयल जाइत अछि. केवल प्रारब्धक अनुसार लोक दृष्टि में लोक संग्रहक हेतु हुनकर मौन बुद्धि आ इंद्रिय द्वारा कर्म होइत अछि. मुदा वस्तुतः ओहि कर्म सँ हुनकर कोनो संबंध नहीं रहैत अछि. तैं एहन कर्म सबके कर्म नहीं मानल जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.